So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So people who are new to my channel, I would like to introduce myself. So my name is Nasrin and I am a cabin crew of Indigo Airlines for the past 1 year. So today's video is all about the eligibility criteria of Indigo Airlines as well as other domestic airlines. Also, I would be sharing some very important points to make sure that before you appear for an interview, you should keep these points in your mind. So make sure you watch this video till end and do not skip any part of my video because you never know which part is important for you. So make sure you have liked and subscribed to my channel and hit the bell icon to get the latest updates of my video. So without any further delay, let's get started. So the criteria number 1. The applicant should be the age of between 18 to 26 years for domestic airlines. So here this is must that you should be above 18 years. अगर आप 18 years से कुछ months या कुछ दिन भी छोटे हैं तो they are not going to let you give the interview. वो पहला स्टेप जैसे आप एंटर करते हैं वहीं पर ही वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो आपसे आपकी एज पूछते हैं कि यहाँ पे जितने भी 18 से कम की उम्र है वो पहले ही अपने हाथ खड़े कर। यहाँ पे एज का इशू इसलिए बनता है बिकॉज 18 इज़ द लीगल एज फॉर अ इंडिविजुअल टू डू अ जॉब एंड कंपनी हैज़ टू फॉलो अ लॉट ऑफ लीगल थिंग एंड योर डॉक्यूमेंटेशन ऑल शुड बी ऑफ वैलिड डेट्स. सो हियर अगर आप 18 ईयर्स से कुछ दिन भी छोटे हो तो दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गिव दिस इंटरव्यू. एंड अगर आप 26 साल तक हैं, आपकी एज 26 साल तक है तो आप इंटरव्यू दे सकते हो. यहाँ 26 साल ये नहीं कह रही मैं कि आफ्टर 27 और आफ्टर 26 यू कैन नॉट, बट एज अ फ्रेशर यू कैन अपीयर फॉर दिस इंटरव्यू इन डोमेस्टिक एयरलाइंस ओनली. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप 30 ईयर्स के हैं, आप 32 ईयर्स के हैं, then it's okay, but as a fresher the minimum age is 18 to 26. So the criteria number 2 is your education. So the minimum required education is 12. If you are graduated, that's okay. If you have done BTech, that's fine. You've done MTech, that's fine, but the minimum education is 12. I would like to share one incident which happened to my friend here, that she did not complete her 12th and she did her polytechnic. So there were many more complications which happened in the Indigo. She was delayed for I guess 2 to 3 months. हम लोग को बुला लिया गया, उसे नहीं बुलाया गया, and at the end उसने बहुत ही क्लियर कट कहा कि we need class 12. आप पॉलीटेक्निक करो, आप डिप्लोमा करो, हमें मिनिमम क्लास 12 ही चाहिए. तो ये चीज़ें हुई. एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी जिसने अपनी एजुकेशन फ़ॉरेन, उसने कतर जाके किया, किसी ने यूरोप जाके किया. तो यहाँ पे क्या करते हैं वो, आप जो भी अपने सर्टिफिकेट्स देते हो उनको अपने सिलेक्शन के बाद, तो वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं. एंड अगर आपने अपनी एजुकेशन फ़ॉरेन से की है तो यहाँ पे बहुत ही डिले होता है एंड यू नेवर नो कि कितना टाइम लगता है. अप्रॉक्स 6 मंथ्स तो मेरी फ्रेंड को लग गया था. एंड मुझे अभी भी कोई अपडेट पता नहीं, उसने लास्ट में उसी ने क्विट कर दिया बिकॉज यू नो दिस इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग थिंग. इफ़ यू हैव ऑल द एजुकेशन लाइक 10th and 12th डन इन CBSE, ICSE or any board from India, that's fine. So they're gonna hire, but these are the complications which were coming in our path. So this is the thing. Criteria number 3 is your BMI. So in some airlines the minimum height for a cabin crew is 155 centimeter for girls. So 155 centimeters for SpiceJet and Indigo and also Vistara. And for AirAsia it's 157 centimeters and for Go Air I guess it's 160 centimeters. So before appearing for an interview you make sure that you have all the eligibility criteria. Similarly कई एयरलाइंस में बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर्स है एंड कई एयरलाइंस में 174 सेंटीमीटर्स है. तो आप लोग इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार उस एयरलाइन की वेबसाइट पे चले जाओ बिकॉज़ वहाँ जाके आप रेडी होते हो, आप सुबह उठते हो एंड आप यू वेंट टू दैट वेन्यू एंड वहाँ पे जाके आप उसके एलिजिबल ही नहीं हो तो वो बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो जाता है. तो अपनी तरफ से फुल इंफॉर्मेशन रखो दैट यू आर इनटू दिस क्राइटेरिया. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट योर वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट. तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट शेयर कर दूँगी जहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग ये वेट होना चाहिए. क्राइटेरिया नंबर 4 इज़ दैट यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट.
तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो लोग डरे नहीं हो, आप फॉर्म फिल कर दो पासपोर्ट के लिए, बिकॉज़ अगर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो भी फॉर्म अगर आप एयरलाइन को देते हो तो दैट्स फाइन, वो भी काम करता है, बट यू शुड अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट अगर आपके पास है, दैट्स वेल एंड गुड, नथिंग टू वरी। क्राइटेरिया नंबर 5 इज़ दैट एज अ फ्रेशर यू शुड बी अनमैरिड। आप लोग जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं वो अनमैरिड ही होने चाहिए बिफोर अपीयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू, बट जो लोग मैरिड है एटलीस्ट यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ होटल और एनी ट्रैवल और एविएशन रिलेटेड एक्सपीरियंस। इंडिगो एयरलाइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ यू आर मैरिड एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू, हैविंग सेड दैट यू हैव अ एक्सपीरियंस विद अदर एयरलाइंस और होटल। तो ये एयरलाइन टू एयरलाइन वैरी करती है, तो ये चीज़ भी मैं पर्सनली बता नहीं सकती बिकॉज़ एक एम्प्लॉई आपको अच्छे से बता सकता है। इंडिगो एयरलाइंस में आई कैन शो यू दैट यू नो कि इफ़ यू आर मैरिड देन इट्स फाइन, यू कैन अपीयर, but you should have an experience with other industries. The criteria number 6 is that you should be fluent with English, you should be fluent with Hindi. Apart from this, if you know any foreign language, that will work very well with your experience, and ये एक एयरलाइन के लिए बेनिफिट है अगर उनके पास एक कैंडिडेट है जो फॉरेन लैंग्वेज अच्छे से बोल सकता है, तो यहाँ पे आपके कुछ % चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी इंडियंस बहुत ज़्यादा फ्लुएंट भी नहीं होते इंग्लिश में, सो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उनको एक बहुत हाई लेवल की फ्लुएंट इंग्लिश भी नहीं चाहिए, यू नो, जस्ट आप अपने सामने वाले बंदे को कुछ समझा सके और उनकी बात समझ सके, इतनी ही बात सफिशिएंट है, तो डरिए मत। हाँ, फ्लुएंसी तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ है कम्युनिकेशन के लिए, यू कैन गो थ्रू दैट, एंड अगर नहीं तो मैंने जो चीज़ सीखी अपनी लाइफ में विच वाज आई वॉच्ड नेटफ्लिक्स अ लॉट, मैंने इंग्लिश वेब सीरीज़ देखी, एंड यू नो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं इंजॉय भी करती हूँ एंड मैं सीख भी रही हूँ, तो यू कैन फॉलो दैट। ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग एनी बुक्स और इफ़ यू लाइक दैट, तो ये चीज़ें करो एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज़ हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, सब सीख के ही आ रहे हैं। सो हर चीज़ का टाइम है, अब भी आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, दैट्स वाई मैंने अपनी वीडियोस निकालने स्टार्ट किए हैं कि आप इस टाइम को, ये जो कोविड का टाइम है, गिव दिस टाइम टू योर सेल्फ इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ फॉर द एयरलाइंस इंडस्ट्री। ओके, तो ये चीज़ें फॉलो कर लो आप। नाउ कम्स द परफेक्ट आई साइट। यहाँ पे आई साइट आपको इसलिए कही जा रही है बिकॉज यू नो इनका एक यूनिफॉर्म है जिसमें स्पेक्स आर नॉट अलाउड, गॉगल्स आर नॉट अलाउड, तो यहाँ पे आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए। जिनकी थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे है, जिनका मैं आपको बताती हूँ -2 या +2 है, अगर आप उसके बदले लेंस पहन सकते हो दैन इट्स फाइन, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको अगर आप लेंस पहनने के लिए रेडी हो। बट अगर आपकी पावर बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है एंड यू हैव टू वेयर द स्पेक्स, तो इट्स अ बिग नो नो फ्रॉम द एयरलाइंस। नाउ कम्स क्राइटेरिया नंबर 8। सो क्राइटेरिया नंबर 8 इज़ योर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ इसलिए बिकॉज आप काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आपको उठना पड़ता है, रात के 2 बजे फ़्लाइट्स कर रहे हो, रात के 3 बजे कर रहे हो, सुबह के 6 बजे कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी को काफ़ी सारे चेंजेस बियर करने पड़ते हैं खुद के अंदर और आपकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। एंड ऑल्सो आपको तो खुद फ़्लाइट पे जाना है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ 180 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, तो आप खुद ही उनमें से एक पेशेंट ना बन जाओ, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा एंड एयरलाइन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो दैट्स वाई यू शुड हैव अ गुड हेल्थ। ऑल्सो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप बहुत ही एक्टिव रहोगे, आप खुद खुश रहोगे एंड आप दूसरों को भी खुश कर पाओगे। तो यही चीज़ जो है वो एयरलाइन देखती है आप लोगों में, जो पॉजिटिवनेस है वो तो तभी आएगी ना जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। कमिंग ऑन क्राइटेरिया नंबर 9 विच इज़ यू शुड हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड अ क्लियर स्किन। और आपकी स्किन डस्की भी है, दैट्स टोटली फाइन, यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, बट द थिंग इज़ दैट यू शुड हैव अ क्लियर कॉम्प्लेक्शन। Clear means free from pimples and your skin should look flawless. Now comes the main video which is apart from this, आपके बॉडी पे कोई मार्क नहीं होना चाहिए बिकॉज फर्स्ट राउंड जब आप क्लियर करते हो तो वो आपके आर्म्स चेक करते हैं, वहाँ आर्म्स पे उनका मेन मोटिव होता है कि आपके कोई कट मार्क्स ना हो। तो कट मार्क्स इन द सेंस कि ठीक है अगर छोटा मोटा माइनर स्क्रैच है देन इट्स फाइन,
बट मैं यहाँ पे उन मार्क्स की बात कर रही हूँ जो काफ़ी सिवियर होता है, जो मेंटली होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइडल मार्क्स, जो आप ब्लेड से कट कर लेते हो। हम टीनेजर्स हैं, होता है हमारी लाइफ में ऊंच नीच होती है, तो हम एक बहुत ही बुरा स्टेप ले लेते हैं। तो ये चीज़ एयरलाइंस के लिए क्यों मैटर करती है? बिकॉज़ यहाँ पे आप जॉब कर रही हो, ऐसा टाइम आता है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी आपके प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करने लगती है। तो उस टाइम पे अगर आप कोई गलत स्टेप ले लोगे अपने जॉब के दौरान या फिर अपने वर्किंग आवर्स के दौरान, या फिर जब तक आप किसी कंपनी को सर्व कर रहे हो उसके दौरान, तो ये इंडिगो या कोई और एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए भी, बिकॉज़ उनको जवाब देना पड़ता है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए एंड आपने सुसाइड किया। तो मेन यही इशू है कि उन्हें नहीं चाहिए कि आप कल को आपको कोई चीज़ बुरी लग गई एंड आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गए, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गए और उस टाइम पे आपने कोई गलत स्टेप ले लिया, तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। दैट्स वाई वो मार्क्स को देखते हैं। एंड ऑल्सो जैसे हम सभी के घर में पेट्स होते हैं, वो हमें स्क्रैच करते हैं, दैट्स फाइन, यू कैन जस्टिफाई देयर एंड देन, एंड आई हैव अ पेट, उसी के मार्क्स हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर कर दो। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे डॉक्टर से जब आप थर्ड राउंड क्लियर करते हो, विच इज़ BMR, तो वहाँ पे वो आपके लेग्स, आपके आर्म्स, आपका फेस, आपकी टीथ अलाइनमेंट, एवरीथिंग दे आर गोना सी। तो वहाँ पे अगर आप अपने कुछ ऐसे मार्क्स आपकी बॉडी पे हैं भी, तो वहाँ के डॉक्टर्स इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ ना सके कि ओके ये कट के मार्क्स है या फिर ये एक्सीडेंटल मार्क्स है, क्या है। तो आप लोग डीमोटिवेट मत होइए। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी अगेन कि यूटिलाइज दिस टाइम। अगर आपके कोई मार्क्स है आपकी बॉडी पे, स्पेशली इन योर आर्म एरिया, इन दिस पार्ट, इन दिस होल पार्ट, अगर आपका कोई टैटू है उसको गेट इट रिमूव्ड। अगर आपको कोई मार्क है, कोई बर्थ मार्क है, छोटा है, देन इट्स फाइन, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ कट मार्क और लाइक आपका कोई स्टिचेस के मार्क है विच डज़ नॉट लुक वेल, जो अच्छा नहीं दिखता है, जो मतलब जैसे आप सर्व भी करो तो पैसेंजर्स पूछने लगता है कि मैम आपके हाथ में क्या हो गया था, तो उसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए ट्राई टू कंसील इट इफ़ इट्स कंसीलेबल। अगर आप इसको कंसील कर सकते हो तो आप इसको कंसील कर लो, अगर नहीं है तो एक क्रीम आती है विच इज़ मेडोमा, आप उसको अप्लाई करो, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो रिज़ल्ट शो करता है। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। आपकी जो भी आपके पिंपल्स आ रहे हैं, आपको कोई मार्क्स है, कुछ भी है, उसको गेट इट डन, गेट इट ट्रीटेड। तो बस यही कहूँगी। एंड उसे कंसील कर पा रहे हो देन इट्स फाइन। एक बार घर पे ट्राई करो, अगर तो वो नोटिसेबल नहीं है ठीक है चलेगा, बट अगर वो कंसीलेबल नहीं है तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ सम क्रीम। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो, या फिर आप एक मेडोमा क्रीम आती है जो कि स्पेशली इन चीज़ों के लिए ही है, तो आप वो चीज़ यूज़ करो। इसमें और आपको बताना चाहूँगी जो मैंने देखी पर्सनली, जो काफ़ी लड़कियाँ गलतियाँ करती हैं, तो आप लोग क्या करते हो, काफ़ी डार्क स्टॉकिंग्स पहन के जाते हो और वो अच्छे से नहीं देख पाते कि ठीक है आपके कोई मार्क्स है कि नहीं, तो वो आपको कहते हैं कि जाओ चेंज करके आओ। तो आप उस टाइम पे आप बाकी लड़की उससे मांगने लगते हो, which does not look well, and it's very annoying for yourself, and ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती। वहाँ इंटरव्यू के लिए इतनी सारी लड़कियाँ हैं, आप स्टॉकिंग्स के लिए भाग रहे हो, तो अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकिंग लेके जाओ। एंड वही मैं जो बोल रही हूँ 70 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का जो भी आता है, जो सबसे पतला आता है, ट्राई टू वेयर दैट। तो वहाँ पे ये चीज़ें इग्नोर करो। कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, ये मैंने चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की है, तभी मैं आपको ये चीज़ें इतनी क्लियरली बता पा रही हूँ। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट मी वाइल सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट। तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, और जो भी फ्लॉज है आप मेरे उस पर वर्क कीजिए और अपने आप को एलिजिबल बना दो 100%. So thank you for watching this video. Bye bye.